Namaskar. On the behalf of Ministry of Ayush, it's my pleasure to welcome all the journalist friends today. It's a special day for Ayush. और न केवल आयुष मंत्रालय के लिए बल्कि कोविड से जूझ रहे पूरे देश के लिए ही ये एक खास दिन साबित होने वाला है। आयुष 64 के नाम से आप सब शायद परिचित होंगे। कोविड के मुकाबले में इसकी उपयोगिता पर बात करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के कुछ बेहद वरिष्ठ और बहुत सम्मानित वैज्ञानिक मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीएम कटोच। कटोच साहब आयुष CSIR जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सचिव रहने के साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिदेशक रह चुके हैं। कटोच साहब आपका बहुत स्वागत। आपसे इस आज के आयुष 64 के मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुष के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर और UGC के वाइस चेयरमैन रह चुके प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी। भूषण पटवर्धन जी, आपको नमस्कार और स्वागत आपका। आयुष मंत्रालय और CSIR कोलैबोरेशन के ऑनरेरी चीफ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर और पुणे के सेंटर फॉर र्यूमेटिक डिजीज के निदेशक डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जी भी आयुष 64 के संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही CSIR की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यूनिट, इसकी जो प्रमुख हैं डॉक्टर विश्वजननी सत्ती गेरी। डॉक्टर विश्वजननी जी भी हमारे साथ में हैं और जो हालिया शोध हुए हैं उसके बारे में वो भी आपसे बात करेंगी। और ये आज जिस दवा पर, जिस आयुष 64 पर हम बात करने जा रहे हैं, ये जो पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, इसको जो विकसित करने वाली संस्था है यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसके महानिदेशक डॉक्टर N श्रीकांत वो भी हमारे साथ में हैं। तो मैं सबसे पहले तो अनुरोध करूंगा डॉक्टर श्रीकांत से ही कि आयुष 64 के बारे में वे अपनी बात रखें, इस दवा के बनने के सफ़र की झलक आपके सामने रखें 2 मिनट में। लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या इसमें हैंड रेज करने की सुविधा है, आप वो कर सकते हैं, या फिर सुविधा कुमरा जी PIB से हम लोगों के साथ हैं तो आप उनके माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर श्रीकांत से। Sir, good morning everybody. The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences under Ministry of Ayush, Government of India has developed AYUSH 64 initially as an anti-malarial drug through systematic process of drug development that includes the development of pharmacopoeial standards, toxicological studies, and double-blind randomized placebo-controlled trials in 1980s. And it has shown a very significant effect when compared to the conventional allopathic medicine of that period. And later, based on the clinical experiences of the physicians and also identifying the potential of the phytoconstituents of the ingredients of AYUSH 64, that is anti-inflammatory activity and antiviral activity and antipyretic activity. Based on this, it was again tried in the management of influenza-like illness. Particularly in the influenza-like illness, a pilot study was conducted which has shown very significant effect in management of cough, cold, fever associated with influenza-like illness. Taking these leads and other leads from the molecular docking studies, and it has shown, and in vitro studies also conducted in collaboration with DBT, it has shown a potential antiviral effect against SARS-CoV-2. That based on this, taking these leads into the consideration, the interdisciplinary R&D task force chaired by Professor Bhushan Patwardhan has recommended for repurposing this AYUSH 64 for taking for the management of mild to moderate COVID-19.
consequent upon the recommendations, including ICE CSIR joint initiative studies, more than 7 clinical studies has been conducted across the country, including 440 study participants and 9 centers. And it has shown very significant effect, particularly in management of mild to moderate COVID-19. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। और मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी से कि ये जो रोबस्ट स्टडी जिसको हम कह रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों को बताएं। नमस्कार सब पत्रकार मित्रों को, नमस्कार। The results of Ayush 64 study, I must tell you that they are highly encouraging, where a reasonably good scientific evidence has emerged. In the current crisis situation, needy patients really deserve to be benefited from this time-tested, safe and effective Ayurvedic medicine. This randomized controlled multicentric clinical trial was planned as an inter-ministerial collaboration involving Ministry of Ayush, Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Family Welfare. A robust study protocol prepared by Dr. Arvind Chopra and a team of senior clinicians was subjected to rigorous peer review by eminent experts, and advice from ICMR scientists was also obtained. This study was executed by a team of experienced clinical investigators involving modern medicine clinicians and Ayurvedic Vaidyas. The progress of this study was carefully monitored by Ministry of Ayush CSIR Joint Monitoring Committee chaired by Dr. B.M. Katoj. These clinical studies have been conducted in accordance with Good Clinical Practices or GCP, and they were periodically reviewed by an independent data safety monitoring board or DSMB. The test drugs have been standardized for chemistry and quality with help of CSIR Institute IIIM, which is there in Jammu. We hope to soon publish results of these clinical trials in reputed scientific journals, and I'm sure the scientific studies which have been undertaken under the collaborative effort of Ministry of Ayush and CSIR will be extremely useful not only for Indian patients but also globally. नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद भूषण जी, बहुत संक्षेप में, लेकिन आपने बहुत इसकी जो रोबस्टनेस है उसके बारे में बात सामने रख दी सर। और मैं अनुरोध करूंगा अब डॉक्टर विश्वजननी से कि CSIR की ओर से जो वो अपने अनुभव और बात। Thank you so much for this opportunity. I am truly grateful to the Ministry of Ayush for inviting me to this press conference. I think this COVID-19 has been an unprecedented pandemic. We are going through the second wave of it, and we all realize how difficult we are going through the times. And in this context, India has a rich system of medicines, including Ayurveda, Unani, Siddha, and others. So way back in April 2020, when the pandemic had just begun, and we were, all over the place trying to identify what are the best ways of, tackling the situation. That is when the Ministry of Ayush and CSIR, which has been having a long-standing collaboration, came together, and under the advice of the interdisciplinary task force, we identified 4 different herbal formulations that can be taken up for COVID-19. So 3 of the herbal formulations were add-on treatments or adjunct treatments to the current standard of care, and that includes Stenospora cordifolia, that is Guduchi, and Pipalongum, which is Pipali. The second herbal formulation was Glycyrrhiza glabra, that is Yeshti Madhu, and the third one was the Ayush 64, that is the current reference for which the press conference has been set up. And these adjunct treatments to the current SOC have been going through rigorous clinical trials, and the remaining 2, while the Ayush 64 has been completed, the remaining 2 are in progress, and we are expecting results in about a month's time.
In addition to these 3 clinical trials, the CSIR Ministry of Ayush had also collaborated towards taking up a prophylactic trial. And here we chose ashwagandha, that is Vidania somnifera, as a prophylactic intervention for increased risk in healthcare workers. The clinical trial targeting 400 subjects against a randomized arm between the ashwagandha and the hydroxychloroquine is under progress, and we are expecting the results in another 1 month's time. Here, I would also like to draw attention of the press to the fact that the Honorable Prime Minister has always been, guiding and advising us to bring traditional knowledge and modern sciences together. And this platform on which the CSIR Ministry of Ayush has collaborated is an effort in this direction to make sure that our Indian traditional medicine is globally acceptable. I would like to thank the monitoring committee under the guidance of Dr. V.M. Katoch, who have enabled and guided us very well during these clinical trials, and we are hoping to publish our results very soon. Thank you so much. जी बहुत शुक्रिया. जिस मल्टी सेंटर रोबस्ट क्लिनिकल ट्रायल के बाद आज ये आयुष 64 की रीपर्पजिंग की बात की जा रही है, उसके जो चीफ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अरविंद चोपड़ा, मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अध्ययन पर अपनी बात वे भी रखें संक्षेप. मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार सब पत्रकार मित्रों को और बाकी जो अतिथिगण जो इस वर्चुअल मीटिंग में आज उपस्थित हैं. ये मुझे एक बहुत सौभाग्य की बात है और अवसर है कि मेरा उत्तरदायित्व दिया गया है कि मैं आपको जो एक ड्रग ट्रायल आयुष 64 का जो अभी सिम्पटम हुआ है उसके मेन फाइंडिंग्स के बारे में बताऊँ. क्षमा कीजिए कि माई फाइंडिंग्स विल बी प्रेजेंटेड इन इंग्लिश. I am presenting the main results of Ayush CCRS CSI drug trial of I-64. Friends, the current Ayurvedic drug trial was designed and a standard protocol was registered in the Clinical Trial Registry of India in June 2020 after reviews by several distinguished physicians and scientists. The first consenting patient of this trial was enrolled on 21st June 2020. This was essentially a two-group comparative study. We randomized consenting eligible patients with mild and moderate symptomatic COVID-19 to either a group receiving standard of care only or a group receiving standard of care plus Ayush 64 medicine. The aim was to evaluate the adjunct or support therapeutic role of Ayush 64. The study was exploratory and open-label in design. The sample size of 140 patients was considered sufficient to address the clinical research questions. All patients were admitted in the hospital as per the government policy at that time. A pair of Ayurvedic physician and modern medicine led the study team at each side. Importantly, the dedicated COVID treating physician was blinded to the group allocation of the patient. Based on data analysis, both the study groups on enrollment were found well matched for several measures, including standard care treatments, antibiotics, empirical drugs like hydroxychloroquine, ivermectin, blood thinning agents. ये दोनों ग्रुप्स में एक समान के ही इनके आंकड़े बनते हैं. The mean age was 44 years and 75 to 80% were men. Hypertension and diabetes was present in about 20-25% patients in the Ayush 64 and 10 to 15% in the standard of care only. 20% patients in each group suffered from moderate COVID-19. Main results. Only 3 patients in the study worsened to require continuous oxygen and were shifted to intensive care and withdrawn from the drug trial study. 136 patients completed the protocol-based treatment plan. None of the patients in the study died. All patients improved substantially and achieved complete uncomplicated recovery, which was described earlier in the protocol as absence of COVID-related symptoms for 2 successive days and along with a negative RT-PCR swab test. The mean duration of complete recovery from randomization, which was the primary efficacy measure of success, was much less in the Ayush group at 6.5 days as compared to 8.3 days in the standard care only. This difference, friends, was significant both clinically and statistically. 65% patients in the Ayush group and 52% in the standard care achieved complete recovery within 7 days of randomization and were discharged home. Patients showed statistically significant improvement in many other clinical and laboratory measures that I'm not going to details. There were no difference in the adverse events between the 2 study groups.
About 30% patients in each group reported adverse events which were mild and mostly related to stomach, headaches, body aches and pains. Repeated blood checks for routine parameters like hemoglobin, cell count, blood sugar, liver and kidney function tests remained within normal range in both the groups. There was no evidence whatsoever to specifically attribute any kind of adverse event to I-64. Following hospital discharge, 120 patients were followed to complete 12 weeks of study period. Patients in the Ayush group continued their Ayurvedic medicine. There were no COVID-related complications during follow-up or any kind of worrying adverse event. In fact, several patients were tracked daily using a specially designed software mobile app called COVID Kavach. We also recorded several health and quality of life issues using WHO quality of life questionnaire and other instruments. The Ayush 64 group of patients reported significant improvement for several measures of psychological health, fatigue, anxiety, stress, appetite, and sleep. Friends, there are very few published clinical drug trials on mild and moderate COVID-19 to provide evidence-based therapeutic decisions as of today. To conclude, Ayush 64 has shown unequivocal efficacy, safety, and tolerability in the management of mild and moderate cases of COVID-19 and provided additional benefit to standard of care in this drug trial. Ayush 64 was found safe over 12 weeks of use to improve holistically the overall health following COVID-19 recovery. We have also demonstrated, and I wish to stress on this point, a unique and unprecedented evidence-based medicine solution to treat deadly disease like COVID-19 using an integrative Ayurveda and modern medicine therapeutic approach. Friends, medical research is pivotal in curbing any epidemic or pandemic. Finally, I wish to thank wholeheartedly all the patients and their families who entrusted us and participated in this difficult drug trial in difficult times. I salute the Herculean efforts of all my investigators and the medical teams. Finally, I thank the Ayush for giving me this excellent opportunity to participate in this bold and futuristic step in medical care, not only in India, but in the world. I thank the press and one and all for attending this virtual meeting. Thank you very much. Namaskar. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चोपड़ा। और अब अंत में मैं जो जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी आयुष और CSR की है उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर कटोच साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अब इस अध्ययन के सेरियन फीचर्स पर कुछ वो बातें कहें जिससे ये जो भरोसा अभी जगाया है बाकी लोगों ने तो थोड़ा और बढ़ सके। धन्यवाद संजय जी। पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं और जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं सभी को मैं अभिनंदन करता हूं सबका। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है एक्चुअली, जैसे आपने सभी जो 4 सीनियर लर्नेड कोलीग से सुना सबने कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीके से बनी हुई एक हमारी आयुर्वेदा की मेडिसिन आयुष 64 जो लगभग 30 साल से हमारे पास अवेलेबल है दूसरी इंडिकेशंस के लिए, उसका रीपर्पस करके आज से एक साइंटिफिक तरीके से कॉन्फिडेंट ढंग से हमको रिकमेंडेशन कर रहे हैं। 1 साल पहले भी एक कमेटी को अध्यक्ष करने का मुझे मौका मिला और उसमें जब विवेचना हुई, पहले पटवर्धन साहब की कमेटी ने देखा, फिर हमारी कमेटी ने देखा, तो एविडेंस थी, इंटरिम एविडेंस थी कई जगह से कि ये बेनिफिशियल है। थ्योरी से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी था, लेकिन ये जो आज वेल कंडक्टेड स्टडी के बाद हम कई चीज़ें बड़ी स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि ये आयुष 64 की एप्लीकेशन 2 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक के इस्तेमाल तक एकदम सेफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो लोग कॉन्फिडेंटली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी साथ में यूज करके एडिशनल बेनिफिट देती है, जो चोपड़ा जी ने भी बोला और बाकी डॉक्टर पटवर्धन ने सभी ने इंडिकेट किया सारी बात। तो आयुर्वेदा के फिजिशियंस और हमारे एलोपैथी के फिजिशियंस कंबाइन करके उनकी देखरेख में लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि अभी माइल्ड और मॉडरेट केसेस की जो यूटिलाइजेशन है, जो उनका जो मैनेजमेंट है, उनका नंबर बहुत बड़ा है और उनको ये भी अनुभव है कि उनको घर पे आराम से मैनेज हो जा सकता है। तो ये कंबाइंड जो मैनेजमेंट है हमारी एलोपैथी और आयुर्वेदा की, जिसमें उसमें आयुष 64 हमारी फिजिकल, दैट मीन्स ये बीमारी को जल्दी ठीक करने में, वायरोलॉजिकल बेनिफिट, क्लिनिकल बेनिफिट, और उसमें दोनों शामिल है, फिजिकल और मेंटल भी सारा, और जल्दी आदमी अपने को उसकी फटीग जाती है, जल्दी वो बेटर वेलबिंग होती है। तो क्लिनिकल रूप से, पब्लिक हेल्थ रूप से
इसका कंबाइंड एप्लीकेशन कोविड की मैनेजमेंट में, जिसके कि अधिकांश 90% जो लोग हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं, माइल्ड और मॉडरेट के बीच में, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साइंटिफिकली डेटा बड़े रिगरसली कैप्चर किया गया है। पहले हमने पिछली डेटा को एनालाइज किया था, लेकिन इन स्टडीज के बाद इस पार्टिकुलर स्टडी का डेटा तो बहुत क्लोजली मॉनिटर हुआ है। तो उस बेसिस पे हम कॉन्फिडेंटली देश को आश्वस्त करते हैं और सबको बताते हैं ये बात की कंबाइंड तौर पे ये दिस इज वेरी बेनिफिशियल, सेफ for use for anything from 2 weeks to 12 weeks, is effective virologically also, जल्दी आदमी RT-PCR नेगेटिव होता है और क्लिनिकली जल्दी ठीक होता है। सो इज ए फास्ट रिकवरी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो आई थिंक ये समय है इसको अपने पूरे परिप्रेक्ष में अच्छी ढंग से कॉन्फिडेंटली यूज करने का। जनता इसके बारे में आश्वस्त करेगी और अब लगभग ऑलरेडी 45,000 के करीब लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि इंटरिम रिकमेंडेशंस पहले आई थी पिछले साल। तो आई थिंक ये आज के दिन के बाद साइंटिफिक वर्क भी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने में सहयोग देगा सारा। और जो लोग बिलीवर्स हैं दोनों चीज़ों के, दे विल बी बेनिफिटेड। दैट मीन्स दिस इज अ साइंस बेस्ड रिकमेंडेशन, एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन, जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट है। तो मैं आप सभी जो CSIR और आयुष के जिन्होंने कंबाइंड ये स्टीयरिंग की है सारी प्रोसेस की, उनको मुबारक देता हूँ, देशवासियों को भी देता हूँ और सभी को देता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण मोड पे हम खड़े हैं जिसमें कि फाइट करने का हमें स्ट्रेंथ और मिली है। धन्यवाद। जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कटोच। So friends, in nutshell, what has been discussed just now, if I can summarize and then can open this for this session for question and answer session. So it is that Ayush 64 is found useful in the treatment of mild to moderate COVID-19. Randomized clinical study demonstrated the safety and efficacy in mild to moderate COVID-19. This can be recommended for asymptomatic, mild to moderate COVID-19, and it is also been recommendable. It is recommendable to state licensing authorities also for repurposing. That is also one of the major things. And what Dr. Patwardhan said, that this study is highly encouraging. So हम देख ही रहे हैं कि हमने अपनी जितनी बात सुनी है उसमें आपके सामने। और अब ये सेशन ओपन करते हैं हम लोग सवाल जवाबों के सत्र के लिए। तो मैं सबसे पहले अब्दुल वदूद साहब हैं, उनको मैं माइक दे रहा हूँ अपने को, अनम्यूट कर लें और उसके साथ अपना सवाल पूछें। अब्दुल वदूद साहब, अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, किस प्रेस से हैं, कैसे। अब्दुल वदूद हैं क्या? शायद अभी नहीं है। अच्छा, सर इंडियन एक्सप्रेस से अनुराधा हैं। जी, तो आप अनुराधा जी को आप कर दें। एक मिनट, आप कर रही हैं सुधा जी? नहीं सर, आप ही कीजिए। तो उनका क्वेश्चन है। अनुराधा जी को मैंने ओके अनुराधा जी, यू कैन यस स्पीक नाउ, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज एंड योर क्वेश्चन। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ अनुराधा जी। अनुराधा जी आप सुन पा? अनुराधा जी आपको अनम्यूट करना होगा। Anuradha ji, please speak. Yeah, can you hear me? Yes, please ask your question, please. Yeah, so Dr. Patwardhan, Dr. Chopra, Dr. Katoch, congratulations. And sir, I just wanted to ask you, basically, this trial participants, did they have comorbid conditions? And also, these new variants which have come up, how effective is this drug going to be? Thank you. Should I answer the question, sir? Please, sir. चोपड़ा जी आप दीजिए। हाँ, तो Anuradha, thank you very much. Nice to see you on this virtual meet.
So the first part of the question is yes, as I earlier stated that 20 to 25% of our patients in this drug trial had diabetes and or hypertension in the IU64 group, and almost about 15% had the same disorders in the standard of care alone group. Uh, that is a fair amount of, I would say, comorbidity, considering that we have 144 patients. The answer to your second question, whether this drug will be effective considering the various mutations that are now taking place or have taken place in our population, possibly cannot be answered based on the data that we have in this book. We hope that they work, but pardon me, but I cannot extrapolate the current results to answer that question. Thank you. ये अनुराधा जी, मैं डॉक्टर कटोच हूं, मैं थोड़ा उत्तर देता हूं उसका थोड़ा सा कि देखिए ये जो दवाई है इवन दूसरी फ्लू लाइक इलनेसेस में भी काम करती है, तो इसके एंटीपायरेटिक और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है विच इज मोर देन द एंटीवायरल, दैट इज एक्चुअली एज इफेक्टिव इन द अदर फ्लू सिंड्रोम्स आल्सो। तो मेरे हिसाब से इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस विल वर्क इन बोथ कंडीशंस, बट वो डेटा कैप्चर करने के बाद कुछ समस्या आएगी तब देखेंगे। अभी मुझे शक नहीं है कि ये नहीं काम करेगी। इट शुड वर्क इन बोथ, यस, rather all types, yes. मोहित राज दुबे हैं। हाँ। मोहित जी अपने को इंट्रोड्यूस करके अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार, मोहित राज दुबे हूँ न्यूज नेशन चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रहा है, लोगों में बड़ा कंफ्यूजन का भी एक तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है। खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि कुछ मेरे नोन लोग हैं जो एक साथ हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई, तो अभी उनका ऑक्सीजन लेवल 93, 94 के आसपास है, लेकिन उनके साथ उनकी छोटी बच्ची भी है, पोती है 3 साल की। तो क्या उनको भी घबराना चाहिए? क्या उनको भी इन्फेक्शन होगा? और जो आप मेडिसिन बता रहे हैं, क्या उसको किस तरीके से इन लोगों को लेना चाहिए? देखिए, मैं दुबे जी इस सवाल का उत्तर बड़ा डिफरेंट है और एक्चुअली इस आयुष 64 से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो जो डिजीज की स्प्रेड है फैमिली के अंदर, छोटे बच्चों को सब में, आई थिंक वो एक रियलिटी है इस वक्त की। और उसके ऊपर हमारे प्रोफेसर बी के पॉल उन्होंने भी जारी कर दिया गाइडलाइंस कि वो फैमिली के अंदर सभी को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज जो नए वायरस के स्ट्रेन्स आए वो सबको प्रभावित करते हैं। तो आई थिंक वो तो अलग मुद्दा बन गया। अभी जो रिजल्ट्स हमारे पास हैं ये एडल्ट्स के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, तो इनके बेसिस पे जो दिखता है कि अगर माइल्ड डिजीज है आपके पास और माइल्ड डिजीज के अंदर आप एलोपैथी की जो प्रिस्क्राइब चीजें ले रहे हैं, जैसे इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन ली लोगों ने, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ली थी कुछ लोगों ने, लेकिन उसके साथ ये देने से बेनिफिट हुआ है लोगों की, वायरल जल्दी नेगेटिविटी आई है, अच्छा उनके सिवियर कोई नहीं हुआ, और उसके साथ साथ उनके अंदर पॉजिटिविटी, फिजिकल एनर्जी वो बहुत जल्दी वापस आई है। तो दिस विल बेनिफिट। लेकिन बच्चों वाला में हम इतनी जल्दी रिकमेंड नहीं करेंगे, पीपल शुड डू अंडर गाइडेंस एक्चुअली। और लेकिन बच्चों में भी ये ड्रग इस्तेमाल की जा चुकी है, ये इज नॉट बीन यूज, क्योंकि पहले ये मलेरिया में, दूसरे फ्लू लाइक सिंड्रोम में यूज हो चुकी है। लेकिन वो कॉन्शियस डिसीजन लोगों को लेना पड़ेगा, उनके डॉक्टरों को लेना पड़ेगा। चोपड़ा जी बोलना चाहेंगे तो? चोपड़ा जी सही कहा। मैं सिर्फ यही ऐड करता हूँ कि इस स्टडी में हमने माइल्ड टू मॉडरेट केस को चूज किया था। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दो। नंबर एक कि कोई भी पेशेंट जिसकी ऑक्सीजन जरूरत बढ़ जाती है और वो सीवियर स्टेज की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको आपको स्टैंडर्ड ऑफ केयर का ही उपयोग लगेगा। पर जब ये आयुष 64 को माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस के अंदर विस्तार रूप से दिया जाएगा, it's very important that patients need to be monitored medically. They have to be under some medical supervision to detect any kind of deterioration. This I want to add to your question. Thank you. सर नितेंद्र हैं दूरदर्शन से। जी नितिन जी। नितिन जी अनम्यूट करके पूछिए जी। बोले नितिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आगे नितेंद्र जी नहीं जोड़ पा रहे तो सहारा टीवी से मृगांक जी से ले लीजिए। हाँ, मृगांक को ले लीजिए। मृगांक आप बोले, मृगांक जी। यार பேர்லாம் இருக்குற यार नेम இருக்கு। मृगांक जी आप अनम्यूट करके अपने को बोले, आपने अनम्यूट नहीं किया है अभी। मृगांक आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। हेलो। जी 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 बोलिए। सर मैं और मेरी वाइफ जो है अभी कोविड से सफ़र कर रहे हैं और मुझे लगभग चौथा या पांचवा दिन तो बुखार में, मेरी वाइफ को जो है 7th डे है। ऑक्सीजन लेवल वगैरह ठीक है, सब कुछ है, कोई खांसी जुकाम नहीं है, ना कोई सेंस ऑफ स्मेल या टेस्ट गया है। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हम लोग जो है ये जो आपने मेडिसिन लॉन्च किया आयुष 64 या कुछ मुझे आप ऐसे प्रोटोकॉल बता सकते हैं जिससे हम अपने घर पे बैठ के ही जो है आयुष की मदद ले सकें या अपने आप को इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें और इससे जल्दी बाहर आ सकें। चोपड़ा जी आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि शायद बहुत विस्तार रूप से इट इज रेलेवेंट टू मेनी पीपल। यस, आई थिंक योर इज एन आइडियल कंडीशन जहाँ की आयुष 64 का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मल्टीपल बेनिफिट्स एंड इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। और श्रीकांत जी हमारे साथ बंधे हुए हैं CCR से जो ये बात कंफर्म कर देंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज देयर। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप शुरू कीजिएगा इन द प्रिस्क्राइब्ड डोज 1 twice a day आपको बताया जाएगा। बट इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ वर्सनिंग डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम और आगे बढ़े। कुछ भी आपके अगर सांस चढ़ने में कोई तकलीफ होती है और आप आज भी लोग मॉनिटर कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन लेवल 94 के आसपास नीचे आने लग जाता है, at that stage you may not stop Ayush 64 but you need to consult a COVID-19 physician. But more is ideal as far as my thinking is concerned. Thank you very much. Thank you sir. Thank you. डॉक्टर श्रीकांत आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर इसमें I-64 is available in the market. सर more than 30 companies in the country are मैन्युफैक्चरिंग, 30 से ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अवेलेबल है ये। जो मिनिस्टर ऑफ आयुष का IMPCL which is a company, it is also preparing and it is available in the market. As suggested by Dr. Chopra sir, the I-64 can be used actually up to 3 months continuously. It is also effective particularly in managing other complications. However, you can consult a Ayurvedic physician for taking a clinical decision as per requirement. एक्चुअली मैं अपने पत्रकार बंधु को एक रिपीट मैसेज करूंगा। देखिए मैसेज ये है कि ये दवाई दोनों ही एलोपैथी के जो प्रिस्क्रिप्शन है आपकी माइल्ड बॉर्डरेट की, उसके साथ ही रिकमेंड कर रहे हैं हम, उसके साथ इस्तेमाल करिए। तो दोनों डॉक्टरों की आप टच में रहिए। और अब तक जो डेटा जो आज प्रेजेंट किया है बड़ा स्पष्ट दिखाता है कि वर्सनिंग नहीं होती है, लेकिन किसी में हो जाती है। तो जैसे चोपड़ा जी ने कहा है, वो सजेशन ये चाहिए कि यू हैव टू गेट द कोविड एक्सपर्ट्स ओपिनियन एट दैट स्टेज। अभी हम आशा करते हैं कि ये मोस्टली को प्रिवेंट कर लेंगे ये। यस, इस तरह के अप्रोच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मृगांक जी यही मैसेज लोगों तक जाना चाहिए कि इट्स फॉर द कंबाइंड एप्लीकेशन वी आर रिकमेंडिंग। यस बिल्कुल सर, मैं इसलिए पूछ रहा था। मैं घर पे इतने दिन से हूँ और मैं चाह रहा था कि कुछ इस तरह से मिले कि थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट हो या आयुष का कुछ मिल जाए, क्योंकि एलोपैथी खाते खाते जो है नहीं इम्यूनिटी बूस्ट मृगांक जी, इम्यूनिटी बूस्ट एक बड़ा नॉन स्पेसिफिक सी कमेंट होता है। भैया इम्यूनिटी बूस्ट नहीं है, दिस इज फॉर द इट हैस्टens द रिकवरी एक्चुअली, एंड यू नो सो फॉर द एविडेंस दिखाती है कि इट हैस्टens द रिकवरी in all physical, mental, social सब जगह से। yes thank you very much sir, thank you. okay जी रुचिता शाह। रुचिता जी। yes sir, so the question I have already asked, am I audible? जी बिल्कुल। या सो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछा है कि अभी हम आयुष 650 को इतना प्रमोट करेंगे या आज जैसे न्यूज़पेपर में आएगा कल, तो हो सकता है उसकी डिमांड बहुत बढ़ी, तो क्या हम उसकी सप्लाई को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक मेडिसिन आ जाती है मार्केट में, उसका नाम पॉपुलर होता है, उसके बाद डिमांड बहुत बढ़ती है और फिर वो मेडिकल में या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती। सो आर वी इक्विप्ड विद द सप्लाई? दैट इज द वन क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन कि
हम लोग अभी पूरी तरह से मतलब बहुत ज्यादा तौर पे मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स में देख रही हूँ बहुत सारे, मैं अभी गुजरात में हूँ, राजकोट में जैसे लोग अभी अनऑफिशियल जो मुझे चीजें पता चली है कि 2 लाख रुपए दे के अभी से 3 महीने पहले उनका हॉस्पिटल में बेड बुक कर रहे हैं कि अगर 3 महीने में उनमें से उनकी फैमिली में से किसी को भी कोविड हुआ तो वो उनको हॉस्पिटल में जगह मिल जाए, और अगर 3 महीने में नहीं होता है तो वो पैसे गए। ऐसी सिचुएशन अभी राजकोट में मैंने सुनी है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मेडिकल सिस्टम पे, जो करंट एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है। तो क्या हमारे आयुष इतनी सारी सिस्टम है, उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो इमरजेंसी सिचुएशन को भी डील कर पाए? या सर श्रीकांत जी आप उत्तर देंगे? पहली बात ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन I will try to put. The I-64 is manufacturing permission license is already granted to 30 companies in the country. They are already, most of them are preparing. The IMPCL, Government of India, is the Ministry of Ayush. It is a public sector undertaking. It is also manufacturing I-64, and it fulfills the demands of the country. That is one. Second one, 2 days earlier, Ministry of Ayush has also issued a guidance and advocacy to all state licensing authorities and manufacturing associations to repurpose this and to also grant permission if somebody is applying for new companies trying to manufacture to process it at the earliest. CCRS is also ready to immediately grant them permission in association with National Research Development Corporation. I think we can fulfill the demands. चोपड़ा जी बोलिए। नहीं सर, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मैडम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और एज अ क्लिनिशियन, एज अ फिजिशियन, आई वांट टू जस्ट शेयर इट विद माय फ्रेंड्स कि मैडम इसमें कोई शंका नहीं कि कोविड-19 एक भयानक बीमारी है। अगर हम उसके पूरे विस्तार रूप को देखते हैं तो 90% प्लस पेशेंट जो हैं, आप हम सब जानते हैं कि उनको माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी होगी, जैसे कि कटोर सर ने बताया, इसके आंकड़े हमारे पास हैं। सिर्फ हमें अपने पैनिक को रोकना है। माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस में, एक्चुअली माइल्ड केस में तो एलोपैथिक मेडिसिन में भी कोई विशेष दवाई का कोई भी सबूत नहीं आया आज तक। जिंक और विटामिन सी तो सपोर्टिव थेरेपीज हम देते हैं। HCQS, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है, बट प्रूफ इज वेरी लिमिटेड। Therefore, I want to reinforce this particular message. In mild situations and even early moderate, you can certainly use IU-64 like drugs under some supervision. Don't panic. अधिकतर लोगों में एमरजेंसी नहीं बनेगी, ये बात बहुत जरूरी है लोगों को समझाने के लिए। उनको हॉस्पिटलाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रायल मैंने प्रेजेंट किया है, उनको पेशेंट को एडमिट इसलिए किया था क्योंकि शुरू में आप जानते हैं कि पैंडेमिक में पिछले साल मई जून में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि ऑल पेशेंट्स बीइंग एडमिटेड, और आज इन पेशेंट को एडमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। IU-64 कैन बी कंबाइंड विद अदर सपोर्टिव थेरेपी और इवन HCQS जैसे कि कटोर सर ने कहा। सो डोंट वरी, ये सिचुएशन वाली बात है। बाकी तो आई नो दैट जब किसी को कोविड-19 होगा तो साइकोलॉजिकली एक बहुत भय होता है, और उस भय को कंट्रोल करना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट कटोर सर? somehow to remain calm and take the things most rationally along with your physicians. Thank you, sir. मदन जैड़ा जी हैं, मदन जैड़ा जी हिंदुस्तान से। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आज 2 बात तो मुझे जरा ये बात रिपीट कर दीजिए। कितने लोगों का? मदन जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी। 2 चीज बता दीजिए। एक तो ये ट्रायल किस हॉस्पिटल में और कितने लोगों पर किए गए, मैं सुन नहीं पाया। क्या हम ये मान के चलें कि अब ये ड्रग रेडी टू यूज मार्केट में अवेलेबल है? क्योंकि ड्रग तो ऑलरेडी मार्केट में है, आपने रिपर्पस कर दिया, तो कल से ये कहा जाए कि कोरोना पेशेंट के लिए, मॉडरेट या हाई पेशेंट के लिए दवा बेस्ट है? एक्चुअली मदन जी देखिए, पहले सवाल का उत्तर वैसे चोपड़ा जी देने के तो बता देंगे, जो उन्होंने अपने डेटा में दिया भी कि ये वाला स्टडी तो हाँ, ये वाली जो स्टडी है वो 140 लोगों पे की गई। ये वाला जो डेटा आज डिस्कस हो रहा है, जो केयरफुली एक एक का बड़ा विवेचना की गई,
लेकिन 500 जो डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि और कई सेंटर्स में इनको छोड़ के 5-6 सेंटर और में भी को इनके पास 500 या 600 पेशेंट का डेटा है। और उसके बाद जब ये लास्ट ईयर रिकमेंडेशन हुई तो कि ये ड्रग पोटेंशियली यूजफुल है, करनी चाहिए यूज, तो 45,000 लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो एक्चुअली कोविड के अंदर भी उसका हम एनालाइज नहीं किया, हम उसके ऊपर बोल नहीं रहे क्योंकि वो डेटा हमने एनालाइज नहीं किया। लेकिन ये जो डेटा हमने अपनी अब इस स्टडी का जो डॉक्टर चोपड़ा ने बहुत डिटेल में प्रेजेंट किया है, उसके डिजाइन भी, उसकी करने का भी, तो इसमें ये दिखाता है कि बड़ा क्लियर कट रिकवरी में आदमी जल्दी RT-PCR नेगेटिव होता है, वो 2-2 दिन का फर्क पड़ गया, 3 दिन का फर्क पड़ गया, उसके फिजिकल सिम्टम गायब हो जाते हैं, और उसके बाद उसकी जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग है उसमें बहुत ही कंट्रास्ट फर्क पड़ता है। तो और वर्सनिंग किसी की नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात। तो अगर अब ये जो चोपड़ा जी ने बार बार एम्फेसाइज किया है, ये 90% लोग इनकी वर्सनिंग प्रिवेंट कर लेंगे, इनकी बाकी चीजें हम संभाल लेंगे, तो बाकी जो मैडम शाह कह रही थी कि जैसे गुजरात में पैनिक है और जगह पैनिक है, वो पैनिक वाली बात लोग तो फिर भी कुछ वंडर करेंगे, उनकी अलग बात है, और लोग साइकोलॉजिकली डरे होते हैं, ये भी बात सच है। लेकिन वो अगर उस तरफ लोग ज्यादा वर्सन नहीं करेंगे, ज्यादा लोग यूज करके, तो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक दिस हेल्प्स यू ऑन दैट फ्रंट आल्सो। हम उसके रिकमेंड नहीं कर रहे कुछ भी अभी नहीं, तो इसको अभी दवा को रेडी टू यूज माना जाए या नहीं माना जाए? इट्स रेडी टू यूज, ऑलरेडी इज इन यूज। मतलब आज के बाद हम इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि साइंटिफिकली हमारे पास डेटा रोबस्ट है कि ये दिखाता है कि ये 2 हफ्ते से 12 हफ्ते तक बिल्कुल सेफ है टोटली, और उसके बाद ये दिखाता है कि आप जल्दी ठीक होंगे, फिजिकली भी, वायरस से भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, और बिल्कुल फिट होंगे जल्दी। यस डॉक्टर चोपड़ा जी। यस सर, आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दिया, पर मुझे एकदम ध्यान आया, एक्चुअली श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, ही इज अ वेरी सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन। आयुष 64 में जो 4 प्लांट्स हैं, हमारी स्टडी के अनुसार पहले जो हमने किया था, दे हैव गॉट 2 एडिशनल बेनिफिट्स। चारों के चारों प्लांट्स आर वेल नोन फॉर रिड्यूसिंग ब्लड शुगर लेवल एंड प्रोटेक्टिंग द लिवर। 2 बातें जो बहुत ही आवश्यक हो गई हैं इस कोविड-19 के सिचुएशन में सर। और हमारी स्टडी में इतनी समय कम था, इसलिए मटेरियल में गया नहीं। हमने इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा है कि ब्लड शुगर लेवल्स वर मेंटेन्ड, भले ये माइल्ड मॉडरेट केसेस है, पर हम जानते हैं, हम एक्सपीरियंस की ब्लड शुगर्स कैन बिग प्रॉब्लम इन कोविड-19, दे वर मेंटेन्ड and also the liver functions did not become abnormal, at least in these patients that we are treating. I think this is a very important point to add, sir, from a clinician's point of view. श्रीकांत जी कुछ आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से बोलना चाहते हैं तो श्रीकांत जी ऐड कर दीजिए। तो मैं सर, thank you very much, sir. You have rightly pointed, sir. The hepatoprotective activity is also studied pharmacologically, sir, I-64, and it is that it also reduces the complications of the, if we are adding this I-64 to the standard of care, or I-64 as standalone also in COVID-19 mild to moderate subjects, it prevents, actually it can address the other comorbidities. You can safely give along with the comorbid conditions. Second one, other studies, we have studied around 360 subjects we have studied in RCTs, add-on therapy, and other trials including ICSIR study, and standalone I-64 also studies in asymptomatic subjects, sir. It actually arrests the progression of the disease, sir. It arrests the further progression of the disease. In other studies also we found, in addition to the early recovery and improvement of the quality of life. It can be safely used, it is ready to use. श्रीकांत जी ब्लड शुगर के बारे में बोलेंगे, I-64 and blood sugar? Sir, I-64 ingredients like Saptaparna and other Kuberaksha has a very significant role in reducing the blood sugar also, sir, as a plant's individual. Otherwise, I-64 as a formulation, it is we have not studied, sir. Otherwise, the ingredients are very potent in reducing the blood sugar, and it has already proven hepatoprotective activity. सर नितेंद्र, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मुझे सर इतना ही बताना है कि ये ट्रायल्स जो हुए हैं वो देश के जाने माने एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स में हुए हैं। तो उनके नाम श्रीकांत जी थोड़े बता दिए कौन से हॉस्पिटल्स में ये हुए हैं,
तो पत्रकार बंधुओं को भगिनियों को पता चलेगा कि ये सभी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में हुए। सर, ये स्टडी आयुष CSIR जॉइंट इनिशिएटिव, अभी डॉक्टर चोपड़ा सर इज एक्टिंग एज चीफ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर. It is conducted in 3 important institutions, sir. KGMU, King George Medical University, Lucknow, and it is the Datta Mega Institute of Medical Sciences, Wardha, Bombay Municipal Corporation COVID Care Center. These are the 3 reputed hospitals. It is conducted and with principal investigators from the allopathic side, and also Ayurvedic physicians from CCRS and other institutes also involved. Other studies we have conducted in Dhanvantari Ayurvedic College, Chandigarh, in collaboration with PGI Chandigarh. All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, also conducted I-64 RCT. And Guru Govind Singh Government Medical College Hospital, Jamnagar, Government Medical College, Nagpur, and Ayurveda Inani Tibia College, it is a famous Ayurveda college in Delhi, and Chaudhary Brahma Prakash Ayurveda Charak Samstha. This is also a tertiary healthcare hospital. These are the 9 centers where the study is conducted. Both RCTs and single arm studies are conducted in all these 9 centers. The results of the all 9 centers are almost comparable, sir. Early recovery, improvement of the quality of life, arresting the further complications or further progression of the disease. These are the important outcomes of the physical and psychological quality of life. It's improved. And further, to add to this, to study that the study conducted, in vitro study conducted in Trishti also has shown that it has a significant effect in lowering the viral load, particularly in the SARS-CoV. And the molecular docking studies, what we have studied in collaboration with ICMR NIN, it has also shown that 30 compounds which are present in I-64 are having very good binding energies, particularly against this virus. And one N-economic acid, which is available in Saptaparna, Aristochia scalaris, one of the ingredient of I-64, has shown very significant efficacy against this virus. सर, सर्जना शर्मा है जी. सर्जना जी. हाँ, नमस्कार सबको. Am I audible? जी बिल्कुल, प्लीज. मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि बहुत सारे आयुर्वेदा सेंटर हैं, एकड़्स में फैले हुए हैं, जहां पर कि अच्छे बेड की व्यवस्था हो सकती है. क्या ऐसे में आयुष मंत्रालय इन सबको, जो इतना बड़े बड़े इनके पास एकड़्स एंड एकड़्स में रूम्स हैं और सुविधाएं हैं, तो क्या वहां पर पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता? मैडम, एक्चुअली हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बात आपको इस ध्यान में रखने की क्या है कि बेड इज नॉट द इशू. हमारा इशू है सिर्फ उसमें आप जो सीवियर केसेस में आपको एक अच्छे एनेस्थेटिस्ट और क्वालिफाइड लोगों की जरूरत पड़ती है, जो शुरू से ही आयुष के सिस्टम में उसके स्टडीज नहीं हुई है साथ में, एटलीस्ट कोविड में. एक आधे 2 इनके आयुर्वेदा के बड़े इंस्टीट्यूशन में हुई है, लेकिन बाकी जगह नहीं हुई है. तो इस वक्त जो सीवियर डिजीज है उसके लिए मैनेज करनी, ज्वाइंटली मैनेज करना पड़ेगा. तो सब इस टाइप की स्ट्रेटजीज शुड बी थॉट अबाउट, जिसमें कि माइल्ड मॉडरेट डिजीज को तो घर पे ही हैंडल किया जाएगा, इसको तो हॉस्पिटल आने की आयुर्वेदा में भी जरूरत नहीं है. लेकिन जो जिसको ऑक्सीजन चाहिए या जो ऑक्सीजन के बाद जो क्रिटिकल केयर चाहिए, उसमें दोनों टाइप के फिजिशियंस कंबाइन करके इसको हैंडल करें तो क्षमता बढ़ सकती है काफ़ी. तो उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही सोचेगी और चर्चा करेगी, क्योंकि वो बात हम तो आज एक बड़े विशेष सब्जेक्ट पे बोल रहे थे, लेकिन जो आपकी जो आकांक्षा है वो देश की आकांक्षा है एक्चुअल में, और लोग भी इसके बारे में सोच रहे हैं जरूर. तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और दूसरे आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सभी मिलके ये लोग इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे कुछ ना कुछ, ये आशा है मेरी. सुविधा जी, धन्यवाद. संजय सर, नितेंद्र जी. पटवर्धन साहब बोल रहे थे. नहीं, मैं इतना ही ऐड करना चाहता हूँ. ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और सुझाव भी बहुत ही अच्छा है. इसके बारे में कल ही मेरी सेक्रेटरी आयुष से बात हुई है
और वो इमीडिएटली बोले कि इसके बारे में हम लोग जरूर काम शुरू करेंगे और इमरजेंसी में करेंगे। इसका एक मॉडल हमारे पास उपलब्ध है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है दिल्ली में, वहाँ पे कोविड सेंटर है ऑलरेडी, और वहाँ पे एलोपैथिक और आयुर्वेद के दोनों डॉक्टर्स एक साथ में काम करके पेशेंट्स को मैनेज अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो अलग अलग जहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में ऐसी सुविधा बनाई जा सकती है, उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जरूर विचार कर रही है। इतना ही मुझे आपको बताना था। जी मुरुगेशन जी सर। मुरुगेशन जी, आपको अनम्यूट करना होगा डॉक्टर मुरुगेशन, यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। अभी अनम्यूट नहीं किया जी, बोले। यस सर। जी प्लीज स्पीक। यस सर, आई एम डॉक्टर एस मुरुगेशन, NIS सर। यस सर, प्लीज। यस sir, we perform observational study regarding COVID-19 care sir, and preclinical trials regarding COVID-19, prophylactic studies and Kabasara Kudineer camp for prevention of COVID-19, and also toxicity studies sir, 5 formulations sir from NIS. Dr. Murugeshan, thank you very much. Actually, okay. See today we are focused on the Ayush 64 because this data has become available. It's a clinically monitored study. So Dr. Vishwajanani said there are 3 more studies being monitored jointly by CSIR and Ministry of Ayush with the Ayurvedic formulations. Then the Ministry of Ayush is monitoring your work of the National Institute of Siddha and other Siddha interventions, Unani interventions, homeopathy interventions. Okay, so the Ministry of Ayush, there is a task force which Dr. Bhushan Patwardhan coordinates. So that way, those data will be analyzed, that data will be put to use by modifying the earlier recommendations. So your data also will come into use. But today we were focused only on the Ayush 64. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. But your all data will come into picture actually. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. For using all the other traditional medicine systems, and allopathy together or alone or in a combined manner, that will all come into use. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, Vijay Lakshmi हैं. Sir. जी. विजय लक्ष्मी जी एक सवाल पूछना चाहती हैं, हिंदुस्तान समाचार से हैं वो पूछना चाहती हैं कि वो ये जो आयुष 64 है ये कहाँ अवेलेबल है, और ये सिर्फ क्या प्रिकॉशन के तौर पे ली जा सकती है या डिजीज होने पर ही ली जा सकती है? मैम इसका मैं क्योंकि उत्तर डॉक्टर श्रीकांत दे चुके थे, शायद उन्होंने वो सेंटर के उनके नाम तो नहीं बताए उन्होंने, पर उनका कहना है कि 30 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं कंट्री में इसके, क्योंकि ये 1980 के दशक से चल रही है दवाई। मलेरिया में इस्तेमाल होती है, बुखार में यूज होती है, फ्लू लाइक सिंड्रोम में यूज होती है, तो इसकी एप्लीकेशन कोई नई नहीं है, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। अब कितनी कहाँ अवेलेबल है वो तो इनके ड्रग कंट्रोलर्स बता सकते हैं कि उनके पास डाटा होता है इसका। तो आई थिंक वो वाली बात, इसकी सुविधा अवेलेबिलिटी पर कोई प्रश्न नहीं है। आज तो जो हम इसका साइंटिफिक डाटा उपलब्ध हुआ था उसी को आज शेयर कर रहे थे। तो आई थिंक वो वाला वो मैडम ये तो बात उनके जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं इनके जो आयुष सिस्टम्स के, वो उनके पास डाटा हो गए कि कहाँ किसके पास कितनी उपलब्ध है, लेकिन 30 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हैं, ये डॉक्टर श्रीकांत बता चुके हैं। आई थिंक इसकी अवेलेबिलिटी में इशू नहीं है कोई भी। और इसको सर लेना होने पर ही लेना जा सकता है कि प्रिकॉशन? नहीं मैडम इसका जो आज डाटा था, अगेन फिर रिपीट करते हम, ये जो स्टडी है ये सब माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है जिनको सिम्टम है उन पे हुआ आज का डेटा। लेकिन सोचना यह है कि जो इन्होंने जब रिकमेंड की थी तो एसिम्टोमेटिक में भी यूज करने को बोला था, जिसका भी 45,000 के करीब लोगों का डेटा होगा, 40,000 से ज्यादा का। तो अभी वहां पे भी इसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर जल्दी नेगेटिव होता है तो वो भी जल्दी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास उस डेटा को हमने डिस्कस नहीं किया तो हम बोल नहीं रहे उसके ऊपर कुछ भी। तो but it is going to be potentially useful in the symptomatic also and also the symptomatic जिनके माइल्ड डिजीज है। आज का डेटा माइल्ड डिजीज का था, माइल्ड और मॉडरेट डिजीज का,
लेकिन एसिम्प्टोमेटिक में भी पोटेंशियली यूजफुल होना चाहिए, और ये सेफ है 2 हफ्ते से 3 महीने की एप्लीकेशन में। तो आई थिंक ये आज का तो इतना ही बोल सकते हैं इसके ऊपर। जी सर, हम संदीप सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पूछना चाहते हैं सर। संदीप जी बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच शुभिदा जी। मुझे ये पूछना था, ये जो आयुष 64 है, ये क्या टैबलेट फॉर्म है या कैप्सूल फॉर्म है, और कैसे इसको मतलब यूज़ किया जाता है, मतलब कैसे ये लोग खाएंगे जिसको माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम ऑफ कोविड-19 है। चोपड़ा साहब आप बोलेंगे या? हाँ सर, क्लिनिकल ट्रायल में तो हमने इसको डेली ट्वाइस अ डे दिया था, टैबलेट फॉर्म में था, बट आई थिंक आई रिक्वेस्ट श्रीकांत जी, बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, आई एम अ मॉडर्न मेडिसिन फिजिशियन, आई थिंक ही इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीकांत जी। और कितना दिन खाएंगे? हाँ, कैसे शुरू करेंगे? ड्रग ट्रायल में हमने 3 महीने तक इसका इस्तेमाल किया, इन द बिगिनिंग टू ट्रीट द डिसऑर्डर, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट वाज ओवर, जब लोग उसके बाद डिस्चार्ज हो गए थे, तो उनको इसलिए लंबे अरसे के लिए ये दवाई दी गई थी टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, टू सी द हेल्थ बेनिफिट्स। आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव हेल्थ साइड। कटोच सर ने भी बताया, इस स्टडी में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है इम्प्रूवमेंट फिजिकल, मेंटल, फटीग बहुत कम था, स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल किया गया, एपेटाइट, ऐसे कई अनेकों बेनिफिट्स डिस्चार्ज के बाद भी देखने को मिले 3 महीने की स्टडी में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस करंट सिचुएशन। हम जानते हैं कि कोविड-19 ठीक होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस समय तक होती हैं। श्रीकांत जी, थैंक यू। एक्चुअली और इसकी जो रिकमेंडेशन है, जो हमारी नेशनल रिकमेंडेशंस है, वो 2 हफ्ते की है, तो 2 वीक्स तो मिनिमम रिकमेंड करते हैं, और 3 महीने तक सेफ है बिल्कुल। और इसका बेनिफिट है जो डॉक्टर चोपड़ा जी ने एन्यूमरेट किया। श्रीकांत जी, इसके बारे में बताइए, फॉर्मुलेशंस के बारे में। सारी 14 दिन जो लोग लेंगे, 2 वीक्स, तो क्या रोज एक टैबलेट लेंगे, मतलब कोर्स का क्या ये है? ये ट्वाइस ए डे रिकमेंडेड है, ट्वाइस ए डे रिकमेंडेड है। लेकिन श्रीकांत जी आप बताइए क्या फॉर्मुलेशन उपलब्ध है मार्केट में? यस, इसमें अभी तो टेबलेट के तौर पे जो हमारी गाइडलाइंस में नेशनल में, और ट्वाइस ए डे है। डॉक्टर श्रीकांत। हाँ, तो कब लेंगे, मतलब सुबह लेंगे, खाने के बाद लेंगे? क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन रहता है ना, इसलिए मैं फॉर जनरल पब्लिक में क्लियर होना चाहता हूँ। जब तक श्रीकांत जी आते हैं, आई डोंट नो, वो शायद आ नहीं पा रहे किसी वजह से। आई थिंक संजय जी वो देख लें इस बात को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जब ये प्रोटोकॉल बनी थी उस वक्त बहुत विचार विमर्श हुए थे। इन द प्रोटोकॉल सर, वी हैव यूज्ड इट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स विदाउट एनी अदर डूज एंड डोंट्स। हमने लोगों को इतना कहा था कि बैलेंस फूड वगैरह खाएगा, और आप शायद जो पूछना चाहते हैं कि आयुर्वेदा में बाकी भी अन्य डूज एंड डोंट्स हैं, वो उसी तरीके से इस स्टडी में हमने उनका इवैल्यूएशन नहीं किया। वी हैव जस्ट गिवन दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। उनको बोला गया खाने के बाद आप ले लीजिएगा, और इसलिए के चलो 3 मिनट लिया। बट श्रीकांत जी अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो आपको एक आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं डोजिंग पर। सर, नितेंद्र जी हैं दूरदर्शन से जी, वो पूछना चाह रहे हैं सर एक सवाल। हाँ, और ये ड्रग सुविधा जी, लास्ट मेरा क्वेरी जो है, ये जो 140 लोगों के ऊपर इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उसमें एज क्या था, मतलब महिला, पुरुष, और दो एजेस क्या था? चोपड़ा जी। हाँ सर, थैंक यू। मैंने वो डेटा थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में प्रेजेंट किया था, बट the average age sir was about 40 to 44 years in both the groups, and in this study about 75 to 80% were men. So women का representation इस study में 20% है। और हम अनेकों स्टडीज से, इंडियन स्टडीज, ग्लोबल स्टडीज में एक बात तो हम जान चुके हैं कि the number of men sir, they suffer more than the women for different reasons that we will not go into details now as far as COVID-19 is concerned. तो शायद आपका प्रश्न का उत्तर है कि इस 140 पेशेंट्स जो हैं उसमें men were more than the women, but the women were little less than what you generally see in a community studies or epidemiological studies of COVID-19. Thank you.
ठीक है, आपका वो प्रेजेंटेशन सुविधा जी को दे दीजिएगा कि हमें मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सर एक दूरदर्शन से एक सवाल है। नितेंद्र जी पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। वो पूछना चाह रहे हैं कि ये ड्रग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्या अभी, और क्या ये रेमडेसिविर का ऑप्शन हो सकता है? डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत आवाज नहीं आ रहा आपका। Dr. Shrikant, please unmute yourself. Sir, this is available in the tablet form and capsule form, sir. It is available in the market in the both forms, sir. And generally, the prophylaxis के लिए we can do 2 tablets 2 times a day, and intervention के लिए 2 tablets 3 times a day. We can use it. It's safe, sir. It is not an alternative for remdesivir, sir. श्रीकांत, अनुपान के बारे में भी बताना, किसके साथ लेना है, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ? सर ये गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। मेंटली कॉन्फिडेंट बनाता है ज्यादा यूजर्स को। यस जी सर अब क्वेश्चंस और नहीं है जी। मेरे ख्याल से और समय भी 1 बज गया है, 1 बज चुके हैं, तो जी सर अनम्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। ट्रायल में आई थिंक देयर इज लिटिल कंफ्यूजन। ट्रायल में हमने जो डोज दी थी सर 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे। एंड दैट वी यूज 2 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे फॉर 12 वीक्स। थैंक यू। तो काफी सवाल जवाब का दौर भी चल लिया, और जितना उत्साह और जितने सवाल जिस तरह से आए वो बढ़ते हुए उत्साह और उस भरोसे को प्रदर्शन करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग अब संपन्न करते हैं। आप सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों का बहुत आभार आयुष मंत्रालय की ओर से। मैं पुनः एक बार आप सबका आभार करता हूं, और सभी पत्रकार मित्रों का भी बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने बहुत उत्साह के साथ और बहुत सतर्कता के साथ सवाल भी पूछे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद, नमस्कार सबको, धन्यवाद। संजय जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।